So let's begin our today's session. So prospectus and allotment हमने इसका एक lecture already cover किया था, where we briefly discussed till section 30, right? We started from section 23, we did till section 23. Some of the provisions we had briefly discussed, and some of them we discussed in detail. Balance portion of this chapter is remaining. We will require 2 more lectures. Apart from today's lecture, we will also need tomorrow's or quite possible Friday's lecture. And in that case, ये 3 lecture के अंदर आपका पूरा portion, at least पूरा portion मतलब इस chapter से related जो आपका portion है वो complete हो जाएगा. Most probably Friday तक ये आपका पूरा portion इस chapter से related complete हो जाएगा. And since there was a gap between our previous lecture and this lecture, so I'll just do a quick recap of prospectus and allotment of securities. And I have also done some homework for you all. I have noted down for some of the points which I will share it with you all. Okay. So कुछ points होंगे जो मैं आप लोगों को यहाँ पे slides में लिखूंगा और कुछ points ऐसा होगा जो मैं आप लोगों को discuss करूंगा. So if you feel important, you can note it down. Also, you will have the access to the recording of this lecture. तो आपको लगता है तो आप दोबारा से इस लेक्चर को सुन के पॉज कर करके वीडियो में आप चीजों को नोट डाउन कर सकते हो. तो वो उसमें क्या आपका एक तरीके से इंटेंशनली तो नहीं बोलूंगा बट अनइंटेंशनली आपका एक रिवीजन हो जाएगा. नहीं चाहते हुए भी वो पॉइंट्स को नोट डाउन करने के चक्कर में आप यहाँ पे रिवीजन कर लोगे. राइट तो आज के लेक्चर को मैं उसी हिसाब से प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करूंगा. सो रौनक हैज आल्सो जॉइंड अस. हेलो रौनक, गुड इवनिंग. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वी स्टार्टेड विद दिस टॉपिक ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज और इसमें सेक्शंस जो हमें कवर करने हैं दैट इज फ्रॉम सेक्शन नंबर 23 टू सेक्शन नंबर 42. We have already covered till section 30. Today we will touch till section 35, 30, 36, almost till section 36 will finish. And then the balance sections will cover it tomorrow. And then Friday's lecture we will cover the miscellaneous provisions from this entire chapter. Now again, अगर आप यहाँ पे chapter 3 का बात करो, chapter 3 के अंदर दो पार्ट है. Companies Act का भी chapter 3 जो है उस chapter 3 के आपको दो पार्ट्स मिलेंगे. एक पार्ट है जो आपसे बात करता है फॉर द पब्लिक इशू एंड द सेकेंड पार्ट डील्स विद द प्राइवेट प्लेसमेंट. राइट, प्राइवेट प्लेसमेंट वी हैव नॉट टच्ड, पब्लिक इशू वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. ओके, सो व्हाट इज पब्लिक इशू, व्हाट इज पब्लिक ऑफर? कैन अ प्राइवेट कंपनी डू पब्लिक ऑफर? Prospectus and allotment, can a private company do public offer? Answer is no. Correct, Dhawal has answered, Saloni has answered no. Okay, so a private company cannot do the public offer, but a public company can do a public offer, right? Then we discussed about the concept of prospectus. So what is prospectus? Is prospectus defined in the Companies Act? What is prospectus? आप अनम्यूट करके आंसर करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा. आप अनम्यूट करके आंसर करो, कोई भी गलत सही जैसा भी होगा विल वर्कआउट. प्रोस्पेक्टस क्या होता है? क्या प्रोस्पेक्टस को कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया है? इज इट डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट? Is prospectus defined under the Companies Act? Okay, so I have got one no, I have got one yes. Okay, yes, the prospectus, the word prospectus is defined in the Companies Act. Yes or no? Prospectus को define किया गया है और prospectus का definition कैसा है? If anyone remember, what is the definition of prospectus? I don't want word to word definition, but थोड़ा बहुत भी अगर आप बता पाओ, what is the definition of prospectus? क्या होता है कि सर ये prospectus है, कंपनीज एक्ट ने प्रोस्पेक्टस को इस तरीके से डिफाइन किया गया है. कैसे? आप में से कोई भी आंसर कर सकता है. इनवाइटिंग ऑफर. ओके, सो धवल हैज यूज्ड वन वर्ड, इनवाइटिंग ऑफर. ओके, वेरी गुड. व्हाट एल्स? सो प्रोस्पेक्टस इज बेसिकली इनवाइटिंग ऑफर. ओके, इज इनवाइटिंग ऑफर यूज्ड इन द डेफिनेशन? धवल, क्या इनवाइटिंग ऑफर ये टर्म यूज किया गया है डेफिनेशन के अंदर? विनीत इज सेइंग इनविटेशन टू ऑफर. ओके, सो ये तो बेसिक आंसर हुआ, बट कंपनीज एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से धवल ने एक वर्ड यूज किया यहाँ पे, प्रोस्पेक्टस इज इनवाइटिंग ऑफर्स. ओके, एंड दैट्स द रीजन विनीत, इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर. सो प्रोस्पेक्टस अंडर द कंपनीज एक्ट. चलिए ब्रश अप करो.
बताइए प्रोस्पेक्टस में। अच्छा, कितने तरह के प्रोस्पेक्टस होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस आर देयर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस आर देयर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस आर देयर? अरे, टू. सलोनी सेइंग टू, धवल इज आल्सो सेइंग टू. ओके, कौन से? कौन से? एवरीवन, यू ऑल आर सेइंग टू. ओके, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, वेरी गुड. चलो, तो प्रोस्पेक्टस में एक आपने बताया दैट वन यू हैव रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. वेरी गुड. धवल हैज आंसर्ड अनदर इज shelf prospectus. Okay, we'll discuss about red herring and shelf prospectus. What else is defined in prospectus? What else is defined in prospectus? Prathamesh, correct. Shelf prospectus. एक धवल ने आंसर करेक्ट किया है, इनवाइटिंग ऑफर. प्रोस्पेक्टस से आप ऑफर्स को इनवाइट करते हो. सो बेसिकली प्रोस्पेक्टस इज व्हाट? Any document which is issued. Ronak is saying abridged something, so there is abridged prospectus. Okay, so रौनक ने यहाँ पे एक और चीज ऐड कर दिया, that we have abridged prospectus. What is abridged prospectus? ये तो करेक्ट आपको आंसर करना चाहिए बिकॉज हमने इसको डेफिनेशन वाले सेक्शन के अंदर कवर किया था. सो व्हाट इज abridged prospectus? What is abridged prospectus? abridged prospectus हम किसको बोलेंगे? सेबी रिलेटेड? रौनक नहीं, थोड़ा सा और आप फिल्टर करो अपने आंसर को. सेबी रिलेटेड ये हो जाएगा कि प्रोस्पेक्टस का कंटेंट अब कंपनीज एक्ट नहीं बताता, प्रोस्पेक्टस का कंटेंट आपको सेबी बताएगा. बट इट इज नॉट सेबी रिलेटेड. एवरेज प्रोस्पेक्टस इज नॉट सेबी रिलेटेड. अनडिफाइंड पॉइंट्स नहीं रौनक, नहीं. अच्छा, अब मैं चाहता हूं आप लोग अनम्यूट करके आंसर करो. ठीक है, आप लोग अनम्यूट करके आंसर करो. आई कैन नॉट सी द चैट सेक्शन बिकॉज देन आई नॉट बी एबल टू राइट इन द स्लाइड्स. आप लोग अनम्यूट करके आंसर करो, बिल्कुल जैसे फेस टू फेस लेक्चर होता तो कैसे हम आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते. सो आरती, आप बताओ व्हाट इज एवरेज प्रोस्पेक्टस? व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज्ड प्रोस्पेक्टस? आरती, यू आर देयर? आपका नाम सबसे ऊपर आया है लिस्ट में, पार्टिसिपेंट्स के लिस्ट में. सो आई सेड योर नेम. यस, बताइए आरती. आप सबके पास बुक भी है? यू हैव द ICAI मॉड्यूल आल्सो विद यू? करेक्ट. आप सबने नोट्स भी देखा होगा, तो चेक करो, नोट्स को देखो. व्हाट इज एवरेज प्रोस्पेक्टस? धवल, आप बताओ व्हाट इज एवरेज प्रोस्पेक्टस? बहुत स्पीड में आंसर कर दिया, शायद couldn't hear. धवल, व्हाट इज एवरेज प्रोस्पेक्टस? अरे, कोई आंसर ही नहीं कर रहा है. मुस्कान, व्हाट इज एवरेज प्रोस्पेक्टस? यश, आप आंसर करोगे? यश, विल यू आंसर? व्हाट इज एवरेज प्रोस्पेक्टस?
ओके, करेक्ट। सो यश ने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आंसर किया है, बट यश ने डायरेक्ट मैसेज मेरे को भेजा। Share it to everyone. Okay. Next time when you answer, all of you share it to. Correct. Now Vineet has also answered. It contains the salient features. और विनीत, आपको तो ये आंसर करेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि आपने मुझसे सेलिएंट का मतलब भी पूछा था, याद है? सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। हाँ, याद आया। राइट। ओके। सो एवरेज प्रोस्पेक्टस, देन आपको मैंने बताया था कि कोई भी डेफिनेशन होता है वो दो तरीके से जाता है, एक होता है मींस और एक होता है इंक्लूड्स। यस और नो? डेफिनेशन दो तरीके का होता है। तो जो प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन है वो कैसा है? मींस, इंक्लूड्स और बोथ। क्या है प्रोस्पेक्टस के डेफिनेशन में? दोनों है, मींस भी है, इंक्लूड्स भी है, और इट इज ओनली मींस और इट इज ओनली इंक्लूड्स। Option A only means, option B only includes, option C both. रौनक ने आंसर किया ए, सलोनी इज ऑल्सो आंसरिंग ए। अच्छा, रौनक ने आंसर चेंज कर दिया अभी, सी। सो ध्यान रखना, आंसर, करेक्ट आंसर है सी, बोथ। करेक्ट ऋतिक। सो अभी तक जितना हमने पढ़ा है ये सब क्या है? मीन्स पार्ट है। दिस इज ऑल मीन्स। इंक्लूड्स में क्या आ जाएगा? एनीथिंग विच इज इनवाइटिंग। Okay, anything which is inviting for the offer is what is a document, is a prospectus, right? So वहां पर आ जाता है any document or notice or any circular, right? Advertisement, etc. Anything which invites offer, वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? प्रोस्पेक्टस। करेक्ट। अब याद रहेगा प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन? गाइस, प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन याद रहेगा? एवरेज प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस। ओके। सो प्रोस्पेक्टस के अंदर सबसे पहले यहां पर क्या था? सेक्शन 23 सब सेक्शन 1। चलो मैं एक काम करता हूं, एक दूसरे स्लाइड में करस्पॉन्डिंगली मैं कंपनीज एक्ट का पीडीएफ भी ओपन रखता हूं, सो दैट हम यहाँ पे साथ साथ में क्विक रिकैप कर पाए। ऑलरेडी हमने उसको शेयर करके रखा हुआ है आपके स्लाइड के अंदर, बट आई डोंट वांट टू गो बैक एंड देन कम बैक हियर। तो हम एक काम करते हैं, फटाफट से सेक्शन 31 पे चलते हैं, सेक्शन 23 पे, और वहां पे जाके इसको फटाफट से हम रिवाइज करते हैं, एक एक टर्म को फटाफट से समझेंगे। सो ये रहा आपके सामने बेयर एक्ट, राइट? सो हमने यहाँ पे देखा था चैप्टर नंबर 3, एंड इसमें प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज पार्ट 1 इज फॉर द पब्लिक ऑफर एंड sorry, what does section 23 provides for? Section 23 provides that a public company can issue securities through these modes and a private company can issue securities through these two modes. याद है आपको? एक पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू कर सकता है by issuing prospectus, or they can do a private placement, or they can come up with a right issue or a bonus issue. Correct? However, a private company can only come either a private placement or a right issue or bonus issue. Correct? Guys, this is clear? And then there was an explanation also which provides that public offer कैसे कर सकते हो आप? Public offer कर सकते हो either by IPO or by FPO, right? और वहां पर आप क्या कर सकते हो? Company can issue the securities or there can be an offer for sale. What is offer for sale? कौन बताएगा? What is offer for sale? विनीत अनम्यूट करके आप आंसर करोगे? What is offer for sale? विनीत, क्या आप आंसर करोगे? What is offer for sale? So public company can do public issue
or they can do a private placement. Vineet, I'm waiting for your answer. Or they can come up with a right or bonus issue. And what about private company? Private company cannot come with a public issue, but it can come with a private placement और right issue and bonus issue. फिर सेकेंड पार्ट है, वो यहाँ पर क्या बता रहा है, वो पब्लिक इशू को डिफाइन करने का कोशिश कर रहा है. व्हाट इज पब्लिक इशू? हाउ विल यू डिफाइन पब्लिक इशू? हाउ वुड यू डिफाइन पब्लिक इशू? So who is going to answer? Someone who has not answered till now. Ujjwal, what is public issue? What is public issue? Offer for sale. What is public issue? It can be IPO or it can be FPO, follow on or further public offer. Then हमने एक और देखा था कि ये जो पब्लिक इशू है, either it can be a OFS, that is offer for sale, or this can be a fresh issue. Saloni, what is OFS? Offer for sale. ऑफर फॉर सेल क्या है? अच्छा ये बता दो, ऑफर फॉर सेल में कौन शेयर्स इशू करता है? हु इशूज शेयर्स इन एन ऑफर फॉर सेल? अरे बताइए. कंपनी नहीं, नेम इन. फ्रेश इशू के अंदर कंपनी इशू करता है. करेक्ट उज्जवल. इन टर्म्स ऑफ फ्रेश इशू, कंपनी issues the shares. But when it comes to OFS, who issues the shares? It is the promoters or existing shareholder or the pre-issue shareholders, right? It's the promoters or the pre-issue shareholders. क्या OFS में नए शेयर्स इशू होते हैं? क्या OFS में नए शेयर्स इशू होते हैं? नो, OFS में नए शेयर्स नहीं होते. एग्जिस्टिंग ऑलरेडी इशू किए हुए जो शेयर्स होते हैं उसी को इशू कर दिया जाता है, राइट? चलिए वापस से हम देखते हैं. लेट्स रीड द स्लाइड्स हियर. देन वी हैव सेक्शन नंबर 24. सो अच्छा, अगर कोई कंपनी आईपीओ या एफपीओ लेके आए तो उसको किसको कंप्लाई करना पड़ेगा? फॉर पब्लिक इशू यू नीड टू कंप्लाई व्हाट? कंप्लाई व्हाट? मेमोरेंडम. रौनक मुझे बताओ मेमोरेंडम का क्या यूज होगा पब्लिक इशू में? मेमोरेंडम का क्या यूज होगा पब्लिक इशू के अंदर? इनकरेक्ट. Others, please answer. A company coming up with public issue. Yash has answered SEBI guidelines. कोई यश के आंसर को फिल्टर करेगा? नो रौनक. अच्छा आप ये बता रहे हो लिमिट ऑन रेजिंग द फंड्स. ओके ऑल राइट. सो यू आर टॉकिंग अबाउट ऑथराइज्ड कैपिटल. रौनक करेक्ट, चलेगा वो. बट मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ, वो तो बाय डिफॉल्ट है, वो तो पब्लिक इशू हो या प्राइवेट प्लेसमेंट हो या राइट इशू या बोनस इशू हो, ये तो हर जगह एप्लीकेबल होगा. दैट एज पर द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी यू कैन इशू. तो पब्लिक इशू में स्पेशल क्या होगा? यश ने बोला है सेबी गाइडलाइंस. यश के आंसर को कोई फिल्टर करके करेक्ट करेगा? यश का आधा आंसर करेक्ट है, आधा आंसर रॉन्ग है. और अगर मैं हिंट दूं,
तो सेबी इज करेक्ट, बट क्या सेबी गाइडलाइंस है? क्या सेबी गाइडलाइंस है? करेक्ट। नो रौनक, रूल्स नहीं होंगे, ऋतिक प्रोविजंस नहीं होगा, विनीत रूल्स एंड रेगुलेशंस दोनों नहीं हो सकता, दो में से कोई एक ही होगा। उज्जवल हैज आंसर्ड सेबी regulations and someone else has also answered. Prathamesh has also answered SEBI regulations. So remember, SEBI regulation. Which regulation? If you can answer. Which regulation? Which regulation? Remember, MCQ में ये सब आपको मिल सकता है. It is SEBI regulation, SEBI rules, SEBI guidelines. विनीत, आप मुझे बताओ, SEBI rules क्यों नहीं हो सकता? Of course, regulations related to public issue. But what is the name of that regulation? What is the name of that regulation? And Vineet, why it can't be SEBI rules? Who makes rules? Rules कौन बनाता है? Who makes rules? SEBI rules बनाएगा विनीत? Incorrect. Please check. अरे बाप रे. Ministry, correct. Muskan has answered correct. Rules will be made by ministry. SEBI being the regulator will issue regulations. So it is going to be SEBI ICDR regulations. Correct, Ujjwal. Correct. आया सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस. आपको आईसीडीआर याद रखना जरूरी है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. सो व्हेन द कंपनी इज गोइंग टू कम अप विद पब्लिक इशू, then in that case they will have to comply with SEBI ICDR regulation. Okay, ये क्लियर हुआ? ओके, देन हमने सेक्शन 24 आईसीडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. दिस इज issue of capital and disclosure requirements. देखो, आप सब ने सीए फाउंडेशन के अंदर बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज पढ़ा है, एंड इन दैट बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज आपने ये पढ़ा था सीसीआई, एंड दिस वाज रिप्लेस्ड बाय सेबी. यस और नो? सीसीआई कौन था? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसीआई? अभी तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूं. आई एम आस्किंग, सेबी ने जिसको रिप्लेस किया, ये कौन सा सीसीआई था? करेक्ट, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू. अब आप देखो, जब आप बात करते हो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, तो इसका रिजीम कैसा था? और जब आप बात करते हो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मुझे बताओ, मैं आपको बोलता हूं मैं आपको कंट्रोल करूंगा वर्सेस मैं आपको रेगुलेट करूंगा, कहां पर आपको ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नजर आएगा? कहां पर आपके ऊपर ज्यादा स्ट्रिक्टनेस आएगा? गुड पेरेंटिंग इन्वॉल्व्स व्हाट? रेगुलेशन और कंट्रोल. चलो, गुड पेरेंटिंग तो आप लोगों को क्या पूछूं, बाप तो मैं बनाऊं.
एनीवे आप ये देखो, जब हम बात करते हैं कंट्रोल, आप लोगों ने करेक्ट बोला कि कंट्रोल में यू विल फील मोर प्रेशर्ड। रेगुलेशन कैसा है, रेगुलेटर या रेगुलेशन कैसा रहेगा, आई एम गोइंग टू रेगुलेट यू, उसमें आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, ठीक है। सो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू का कैसा था, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू यूज्ड टू डिसाइड विच कंपनी विल कम अप विद अ पब्लिक इशू। दो कंपनीज है, वो पब्लिक इशू के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, वो बोलते हैं मेरे को अपना पब्लिक इशू लेकर आना है। सीसीआई बोलेगा चलो तुम्हारा शक्ल पसंद है आप आ जाओ, अरे तुम्हारा औकात ही नहीं है, पब्लिक इशू नहीं करो। ये सिनेरियो था, ओके, ये सीसीआई का सिनेरियो था। लेकिन जब सेबी आया तो सेबी ने बोला हम डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको पब्लिक इशू करना है कि नहीं करना है। तो अब क्या होगा, अब अगर कोई कंपनी, राइट, अब अगर कोई कंपनी लेट्स से सेबी के पास जाएगा और सेबी को बोलेगा देखो वी आर इंटरेस्टेड इन कमिंग अप विद द पब्लिक इशू, तो सेबी क्या बोलेगा, एक काम करो आप ये चीजों को डिस्क्लोज कर दो, गिव डिस्क्लोजर्स, ये डिस्क्लोजर्स दे दो, आप एक पूरा लिस्ट बना दिया, राइट। तो कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस आप पढ़ते हो एज पर आईसीडीआर रेगुलेशन, तो उसका लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं। गिव द डिस्क्लोजर, गिव ऑल द डिस्क्लोजर्स, ये डिस्क्लोजर्स है। इन डिस्क्लोजर्स के बाद में आप पब्लिक के पास जाओ, ये डिस्क्लोजर्स किस में जाएगा, ये डिस्क्लोजर्स जाएगा आपके प्रोस्पेक्टस में। गिव दीज डिस्क्लोजर्स, और ये डिस्क्लोजर सब करेक्ट होने चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, वरना आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो गिव ऑल करेक्ट डिस्क्लोजर्स, गो टू पब्लिक एंड लेट पब्लिक डिसाइड वेदर यू शुड गेट लिस्टेड और नॉट। सो अगर पब्लिक मिनिमम सब्सक्रिप्शन दे देगा तो आपके शेयर्स को हम कर देंगे लिस्ट, और अगर पब्लिक मिनिमम सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो फिर आप जहां से आए थे वहीं पे वापस चले जाओ, यू कैन नॉट गेट लिस्टेड। डिफरेंस समझ में आ रहा है गाइस, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है, सीसीआई और सेबी के बीच में। इसीलिए पहले जो रेगुलेशंस था वो कैसा था, कंट्रोलिंग, अभी क्या है, इट इज आईसीडीआर, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, right? So if you want to issue capital, disclose, and these are our requirements. After that you see whether public is interested or not. If public is interested, congratulations, get listed. If public is not interested, stay at your home, okay, stay unlisted. इसीलिए ये गाइडलाइंस है, राइट। आईसीडीआर याद रहेगा, अब आईसीडीआर का फुल फॉर्म भी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, बस इतना याद रखना। सेबी क्या बोलता है, मैं अब डिसाइड नहीं करूंगा, लेट मार्केट डिसाइड वेदर यू आर वर्थ गेटिंग लिस्टेड और नॉट, बट वाई वी वांट टू प्रोवाइड यू दीज इंफॉर्मेशन, गिव दीज डिस्क्लोजर्स, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके। चलिए, सो this is ICDR, issue of capital and disclosure requirement regulations. Okay, tell me, when I say company intended to be issued, company intended to be issued, तो आप मुझे बताओ इसका क्या मतलब है। When will you say the company intends to get itself listed? Intends to be listed, आप याद करो मैंने आप लोगों के साथ दो केस भी डिस्कस किया था, बताइए। When you say the intention is established to get listed, बताइए। The company intends to get listed when?
अभी किसी कंपनी का पब्लिक इशू आ रहा है? अभी क्या किसी कंपनी का पब्लिक इशू आ रहा है? कौन सी कंपनी का धवल? LIC, जोमैटो? क्या आप जोमैटो को बोलोगे इंटेंडेड टू बी लिस्टेड? वाई? वेलनेस फॉरएवर, करेक्ट। आप क्यों बोलोगे जोमैटो इज इंटेंडेड टू बी लिस्टेड? Announcement of IPO? No. Dhaval is saying issued prospectus. Issued prospectus to whom? Issue से ज्यादा अच्छा वर्ड होगा when the company files draft prospectus or the draft red herring prospectus to SEBI, then we say the company intends to get listed. याद आ रहा है आपको? आप इंटेंशन एस्टैब्लिश कैसे करोगे? और क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या ये इंपॉर्टेंट है? आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज सेबी रेगुलेशंस या सेबी एक्ट के अंदर जो रूल्स बनते हैं उसको कब कंप्लाई करना पड़ेगा? द कंपनी विच इज ऑलरेडी लिस्टेड और द कंपनी विच इंटेंड्स टू गेट लिस्टेड, करेक्ट? क्या इसके अलावा भी कुछ है कंपनी इंटेंड्स टू गेट लिस्टेड का? सहारा केस, रिमेंबर? वेयर द अलॉटमेंट made via private placement is more than the limit, तो उसको क्या मान लिया जाता है? डीम्ड पब्लिक इशू। याद आ रहा है? उसको डीम्ड पब्लिक इशू की तरह ट्रीट किया जाता है। रिमेंबर सहारा के केस में यही तो हुआ था। उन्होंने बोला हमने क्या किया था, OFCD ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल को इशू कर दिया, तो यू शुड हैव गॉट लिस्टेड, सो ये सॉरी डीम्ड टू बी पब्लिक इशू हो जाएगा, राइट? सो व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज the SEBI Act or the rules or the regulations, these are applicable to, ये किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल है? These are applicable to the listed companies and these are also applicable to company which intends to get listed. Correct? Is this correct? बच्चा लोग याद रहेगा? ओके, चलिए तो फिर आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, आईपीओ कौन लेके आता है? अनलिस्टेड कंपनी या लिस्टेड कंपनी? हु कम्स अप विद आईपीओ? अनलिस्टेड कंपनी। एंड एफपीओ follow on public offer is made by, follow on public offer is made by listed company. ओके, फैंटास्टिक। चलिए तो हम वापस से यहाँ पे डिस्कशंस में लगते हैं। सेक्शन 24 हमने देखा था, पावर ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टू इशू रेगुलेट द इशू और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। तो हमने यहाँ पर देखा था इट इज एप्लीकेबल टू द कंपनी which are listed and secondly the company which intends to get their securities listed. Okay,
फिर हमने देखा सेक्शन नंबर 25, द डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी फॉर द सेल विल बी डीम्ड प्रोस्पेक्टस। तो इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें ये रहेगा वेयर अ कंपनी अलॉट्स or agrees to allot any security to a company of a company with a view to all or any of those securities being offered for the sale of public, then any document by which the offer for sale to the public is made shall for all purposes be deemed to be the prospectus issued by the company। इसके इम्पैक्ट क्या हो जाएगा कि जितने भी लाइबिलिटीज है प्रोस्पेक्टस के ऊपर, जो भी ऑब्लिगेशंस है, वो सब कैसे आ जाएंगे, वो सारे के सारे कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। राइट, सो एक बार सेक्शन नंबर 25 इसको भी शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। सो सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 डिस्कसेस अबाउट डीम्ड प्रोस्पेक्टस। करेक्ट, दिस इज डीम्ड प्रोस्पेक्टस। और डीम्ड प्रोस्पेक्टस में क्या था कि कंपनी ने यहां पे क्या किया है, कोई भी डॉक्यूमेंट को इशू किया है जिससे कि शेयर्स किसको जा रहा है, पब्लिक को जा रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। तो व्हाट इज डीम्ड प्रोस्पेक्टस, इसको डिफाइन करने का तरीका, दैट देयर इज एन डॉक्यूमेंट, ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स आप क्या कर रहे हो, यू आर इशूइंग सिक्योरिटीज, राइट, ऑफर द सिक्योरिटीज टू पब्लिक। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। और डीम्ड प्रोस्पेक्टस में क्या हो जाएगा, all the provisions will be applicable, all the provisions of prospectus would be applicable। करेक्ट। अच्छा, यहां पे सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 2 थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है अपने को। सबसेक्शन 2 में यहां पे क्या बताया हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इट शैल अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड। इसका क्या मतलब है, अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, इसका क्या मतलब होगा, unless the contrary is proved, हाँ, जो यहां पे बोला गया है उसका ओपोजिट आपको प्रूव करना होगा। यू विल हैव टू प्रूव कि देखो ऐसा नहीं है। तो अगर आपने ऐसा प्रूव कर दिया तो बात अलग है, अदरवाइज क्या माना जाएगा, दैट एन अलॉटमेंट or an agreement to allot of the securities was made with a view of the securities being offered for sale to the public if ये दो चीज में से कोई भी एक कंप्लाई हो जाता है। और ये दोनों क्या था, जब आप क्या कर रहे हो, सिक्योरिटीज ऑफर कर रहे हो, ठीक है, और अल्टीमेटली वो विद इन 6 मंथ्स क्या हो, पब्लिक को ऑफर हो जाए। तो कंपनी किसी और को ऑफर कर रहा है और विद इन 6 मंथ्स फिर वो ओएफएस लेके आए, या फिर द डेट व्हेन द ऑफर वाज मेड, जो भी उसका एंटायर कंसिडरेशन था वो किसको मिले, वो कंपनी को मिले। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है ये आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसी को देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बनाकर दे देता हूँ, सेक्शन 25 सब सेक्शन 2। सो यहाँ पर आपको वो बता रहा है कि कोई भी अलॉटमेंट, एनी अलॉटमेंट और एनी अग्रीमेंट, कोई भी अलॉटमेंट या फिर कोई भी अग्रीमेंट हो, ठीक है, जिसमें क्या रहे अपना, टू अलॉट सिक्योरिटीज, एनी अग्रीमेंट और एनी अलॉटमेंट टू अलॉट द सिक्योरिटीज, ओके, जिसका इंटेंशन क्या हो, फर्दर इशू करने का, इंटेंडेड, ये इंटेंडेड कर दिया, इंटेंडेड होना था, इंटेंडेड टू फर्दर
offer to public, right, it will be deemed if, अब देखो यहां पर दो पॉइंट्स आ जाएंगे। अब यहां पर क्या हो, दो सर्कमस्टेंसेस है, उसमें से कोई एक हो जाए। पहला सर्कमस्टेंसेस यहां पे क्या है कि जो भी यहां पर ओएफएस आ रहा है, ऑफर फॉर सेल, ठीक है, वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर कर दिया जाता है, राइट। ओएफएस इज मेड विद इन 6 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट। और दूसरा यहां पर क्या आ रहा है कि अगर जो कंसिडरेशन है वो अभी तक कंपनी को नहीं मिला, ये जो कंसिडरेशन है, दिस इज नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी एंड सच शेयर्स आर इशूड टू पब्लिक। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कंपनी स्टेप 1 शेयर अलॉट कर रहा है किसको, किसी और को, शेयर्स आर अलॉटेड टू दिस पर्सन, ओके। और यहां से ये क्या कर रहा है, फिर पब्लिक को इशू कर रहा है। तो अब ये क्या डीम्ड पब्लिक इशू माना जाएगा, सो दिस विल बी डीम्ड पब्लिक इशू बाय द कंपनी। और ये पब्लिक इशू क्या है, ये बेसिकली ओएफएस हो रहा है। ये जो पर्सन है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ओएफएस लेके आ रहा है फॉर द पब्लिक। सो दिस ओएफएस विल बी डीम टू बी पब्लिक इशू अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया तो। क्या ये क्लियर है आप लोगों को, क्या ये क्लियर है आप लोगों को, ये वाला पार्ट, राइट। फिर अगर आप देखो तो आपके पास सबसेक्शन 3 आ जाता है, करेक्ट। सबसेक्शन 3 में यहां पर क्या बता रहा है, व्हाट शुड बी द कंटेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस। तो यहां पर वही बताया हुआ है, ये दो कंटेंट होने चाहिए इन सिचुएशंस में। क्या कंसिडरेशन आपको मिला, कंपनी को क्या मिला, राइट, एंड कब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो वो जो मैंने बताया कंपनी और फिर ये जो एक पर्सन है इसके बीच, तो इन दोनों के बीच में क्या कंसिडरेशन था, आपको एक तो ये प्रोस्पेक्टस में बताना होगा, दूसरा ये कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था, किस टाइम पे हुआ था, और कौन थे जब ये प्रोस्पेक्टस जब बना तब कौन कौन यहाँ पे डायरेक्टर्स थे। तो ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देना होगा। सो दिस वाज देयर इन योर सेक्शन नंबर 25। सेक्शन नंबर 26, इसमें काफी सारा अमेंडमेंट हुआ। और सेक्शन नंबर 26 स्ट्रेट अवे आज की डेट में अगर आप देखो तो सिंपल यहाँ पर क्या बताता है कि आपके प्रोस्पेक्टस का कंटेंट क्या होना चाहिए। आपके प्रोस्पेक्टस में वो सब कुछ होना चाहिए जो कि सेबी बताता है अगर कंपनी पब्लिक इशू लेकर आ रहे हैं। सो एवरी प्रोस्पेक्टस इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ पब्लिक कंपनी either with the reference of its formation subsequently or by behalf of any of the person who is or has been engaged in formation of the company shall be dated and signed and shall contain the information। तो यहां पर आपको सिंपली ध्यान रखना है कि सेक्शन 26 यहां पर क्या करेगा, सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको बोलेगा यू शुड कीप ऑल सच इंफॉर्मेशन, करेक्ट, जो आपको यहाँ पर पब्लिक को बताना है। सो बेसिकली यहाँ पर सब जो कुछ भी आपका आईसीडीआर के लिए अंदर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो सब आपको देना होगा। ये पुराना है, ये अपडेट नहीं हुआ, ये पॉइंट ये सब अभी डिलीट हो चुका है, ये सब अभी यहाँ पर डिलीट हो चुका है। तो आपको सिंपली ध्यान रखना है कि सेक्शन 26 यहाँ पर क्या बोलता है, द कंटेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस शुड बी व्हाट, द कंटेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस शुड बी whatever is mentioned in the SEBI regulation, and which regulation it is mentioned in SEBI ICDR regulation, okay। इसीलिए आईसीडीआर का नाम मैंने आप लोगों को बताया, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो सेक्शन 26 वो यहां पर क्या बता रहा है, सेक्शन 26 प्रोवाइड्स दैट द प्रोस्पेक्टस शुड इंक्लूड ऑल द इंफॉर्मेशन, राइट, द प्रोस्पेक्टस मस्ट इंक्लूड
all information as stated in द सेबी। ध्यान रखना आप सिर्फ आईसीडीआर मत लिखना, ब्रैकेट में आईसीडीआर रेगुलेशंस। ये आया समझ में आपको? एवरीथिंग विच इज मेंशन इन द आईसीडीआर रेगुलेशंस। इसके अलावा इस प्रोस्पेक्टस में और क्या रहना चाहिए? द प्रोस्पेक्टस शुड कंटेन ऑल द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, करेक्ट? और ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगा, दीज शुड बी प्रिपेयर्ड एज पर। क्या आप लोगों ने इंड एएस के बारे में सुना है? क्या आप लोगों ने इंड एएस के बारे में सुना है? अकाउंट्स में है आप लोगों का इंड एएस? आई थिंक फाइनल में तो है, इंटर में आई डोंट नो। इंटर में नहीं है, फाइनल में है, करेक्ट, सुना है। तो या तो इंड एएस या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो भी आपका एप्लीकेबल है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सारा का सारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। ओके, ये क्लियर है? इसके अलावा आपको ये वाला जो रिक्वायरमेंट है, दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप राइट इशू लेकर आ रहे हो, ठीक है? सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल। अगर कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी इज कमिंग अप विद अ राइट इशू, या फिर सेम क्लास का सिक्योरिटी अगर आप इशू कर रहे हो जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है और ट्रेडेड है, ठीक है, और इशू इज ऑफ सच सिक्योरिटी which is already issued and traded at stock exchange। आपके स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो ऑलरेडी ट्रेडेड है। आप बताइए, ये आपको समझा? क्योंकि इनके बारे में तो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक के पास है, तो आपको यहां पर कुछ भी नहीं जरूरत पड़ेगा। इसके अलावा जो प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस मस्ट कंटेन द डेट, इट मस्ट बी डेटेड। ये जो प्रोस्पेक्टस है, दिस प्रोस्पेक्टस मस्ट बी डेटेड, राइट? इनफैक्ट ये जो प्रोस्पेक्टस है, दिस प्रोस्पेक्टस मस्ट बी डेटेड, प्लस इट शुड बी signed by how many directors? The prospectus must be signed by how many directors? Important MCQ question. Very good, Ronak. It must be signed by at least 2 directors. Correct. Saloni Dhaval. Correct. It should be signed by at least 2 directors. इसके अलावा ये जो prospectus है, this must also be filed with, this prospectus must also be filed with, कहाँ फाइल किया जाना चाहिए ये? रजिस्टर्ड ऑफिस। रौनक थोड़ा सा फिल्टर करो, रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं, सेबी नहीं, सेबी को ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। लेकिन आप यहां पर क्या लिखोगे? आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ओके, आपको आरओसी को यहां पर इन्वॉल्व क्या, बेसिकली आरओसी को आपको ये फाइल करना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा ये जो प्रोस्पेक्टस है, क्या प्रोस्पेक्टस कैन इट इंक्लूड एन एक्सपर्ट स्टेटमेंट? क्या एक एक्सपर्ट का स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस इंक्लूड कर सकता है? करेक्ट, यस, बट कब कब? एक्सपर्ट स्टेटमेंट कैन बी इंक्लूडेड बट सब्जेक्ट टू कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है ना? क्या है वो टर्म्स एंड कंडीशंस? बट क्या हमने ये सब पढ़ा हुआ है? सबसे पहले एक्सपर्ट कैसा हो,
एक्सपर्ट कैसा हो? इंडिपेंडेंट, यस और नो? नॉट रिलेटेड टू द कंपनी और इन द प्रमोशन और इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इसके अलावा एक्सपर्ट से आपको क्या लेना पड़ेगा? एक्सपर्ट से आपको क्या लेना पड़ेगा? गैंग्स ऑफ वसईपुर पार्ट 2 का एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो एक्ट्रेस है हुमा कुरैशी, उसका हाथ पकड़ता है, तो हुमा कुरैशी क्या बोलती है? एक डायलॉग है, बहुत फेमस डायलॉग, परमिशन लेना चाहिए। करेक्ट, मुस्कान हैज आंसर्ड इट करेक्ट, यहां पे कंसेंट, राइट? सो द कंसेंट ऑफ द एक्सपर्ट, कॉसेंट कर दिया ये मैंने, एनीवे, कंसेंट मस्ट बी ऑब्टेन्ड, यस और नो? प्लस ये जो कंसेंट है, ये कंसेंट किसके लिए होना चाहिए? दैट वी आर गोइंग टू इंक्लूड योर स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, ओके? कंसेंट फॉर व्हाट, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। कंसेंट टू इंक्लूड expert statement in the prospectus, करेक्ट? अपार्ट फ्रॉम दैट, यहां पर ये जो कंसेंट है, कंसेंट मस्ट नॉट बी विड्रॉन, यस और नो? जब आप प्रोस्पेक्टस को इशू कर रहे हो, while you are issuing, or rather while you file it with the till prospectus is filed with ROC, आप बताइए, इज दिस क्लियर? ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? अच्छा, इसके अलावा जो प्रोस्पेक्टस है, on the face of it, it must be mentioned, right? This must be mentioned on the face of prospectus. तो अगर आप प्रैक्टिकली प्रोस्पेक्टस को देखोगे, तो उसके एकदम यहां पर इस जगह कॉर्नर पे लिखा हुआ रहेगा that the prospectus is already filed with the ROC. ओके, ये क्लियर हुआ? ऑल राइट, चलिए, तो यहां पर हमने ये देखा था। अब वापस से बेयर एक्ट की तरफ बढ़ते हैं। आप ये देखो, यहां पर वही बताया हुआ है, सो इट शैल नॉट अप्लाई। अगर आप यहां पर क्या कर रहे हो, राइट इशू लेकर आ रहे हो, या फिर जो ऑलरेडी यूनिफॉर्म है, विच आर ऑलरेडी कोटेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? फिर ये देखो, द डेट इंडिकेटेड इन द प्रोस्पेक्टस शैल बी द डीम डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। फिर ये अपने, इट शुड बी डिलीवर्ड टू द आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन, करेक्ट? फिर ये आ गया एक्सपर्ट स्टेटमेंट, अनलेस द एक्सपर्ट was not related to the formation or in the promotion or the management of the company. इसके अलावा उसने written consent आपको दिया है, and that consent is not withdrawn, correct? Every prospectus issued under subsection 1, ये आपको देखो क्लियरली बताया हुआ है, ये बताना पड़ेगा कि आपने आरओसी को रजिस्टर करवा दिया है। फिर यहाँ पर क्या बोला है, द रजिस्ट्रार शैल नॉट register the prospectus unless the requirement of this section is complied with, then no prospectus is valid for more than 90 days. Okay, very very important thing, ये जो प्रोस्पेक्टस है इसका वैलिडिटी भी रहेगा, राइट? व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस? व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टस? इट इज 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, नहीं, रैदर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपने जब रजिस्ट्रेशन करवा लिया आरओसी के पास, तो आपके पास 90 days का टाइम है
उसका शेल्फ लाइफ रहेगा, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन विद आरओसी वहां से 90 डेज है, एक्सेप्ट फॉर शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस का लाइफ 1 साल का रहता है, राइट, बिकॉज दिस इज वैलिड फॉर 1 ईयर। आप बताइए, इज दिस क्लियर? ये भी सब एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेगा, ये आपका, ये सब आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेगा, तो आपको ये सब चीज ध्यान रखना है। मैं इसीलिए इसको पूरा चार्ट फॉर्मेट में आप लोगों को यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ। इसके अलावा हम लोगों ने सेक्शन नंबर 27 को देखा था, राइट। फिर यहाँ पे ये पेनल्टी प्रोबेशन से सेक्शन 27 वाज सिंपल। अगर आपको वेरिएशन करना है अपने टर्म्स में, जिस टर्म्स पे आपने इशू किया था प्रोस्पेक्टस को, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप यहाँ पे टर्म्स में वेरिएशन कर रहे हो, तो वेरिएशंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 थिंग्स। वन इज यू नीड टू ऑब्टेन स्पेशल रेजोल्यूशन, yes or no? So section 27 variation in the terms of issue, तो वेरिएशन के लिए आपको 2 चीजें रखना है। वन इज ऑब्टेन approval of shareholders, and this is to be obtained via स्पेशल रेजोल्यूशन। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा यहां पर क्या होगा? यू ऑल्सो नीड कुछ लोग अग्री करेंगे, कुछ लोग अग्री नहीं करेंगे, तो जो अग्री नहीं करेंगे उसको लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो लोग अग्री नहीं करेंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करो उनको? जो अग्री नहीं करते उनको गेट आउट बोलना पड़ता है, पर आप गेट आउट कैसे बोलोगे उनको? ऑप्शन टू लीव। अरे बाप रे यश, ये तो आपने बहुत ही लिटरल में आंसर कर दिया। नो, आप ये नहीं बोलोगे ऑप्शन टू लीव। देर इज अ प्रॉपर वर्ड फॉर इट, देर इज अ प्रॉपर फ्रेज। You need to provide exit opportunity. Correct? Yash? Option to leave. रिश्ता वही, लव्स नहीं। ओके, विच इज ऑप्शन टू लीव। बट आप एग्जाम में ऑप्शन टू लीव मत लिखना, राइट? एग्जिट अपॉर्चुनिटी। एग्जिट अपॉर्चुनिटी इज टू बी प्रोवाइडेड टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर, वन हु डू नॉट अग्री। अच्छा, ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन होगा ये आप किसकी तरह लोगे? दिस विल बी ऑब्टेन थ्रू पोस्टल बैलेट। इसके अलावा जब भी आप यहाँ पे वेरिएशन करोगे तो आपको नोटिस देना पड़ेगा। दिस नोटिस विल बी गिवन इन द न्यूज़पेपर। दिस नोटिस वुड बी गिवन इन द न्यूज़पेपर। एक जाएगा इंग्लिश और दूसरा वर्नाकुलर लैंग्वेज, इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज। ओके, ये क्लियर हुआ? इसके अलावा इसी नोटिस के अंदर आप क्या करोगे? यू विल प्रोवाइड द जस्टिफिकेशन फॉर वेरिएशन, कि आप यहाँ पे क्यों वेरी कर रहे हो। आप बताओ, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? आप नोटिस में ये भी बताओगे कि कितना अनयूटिलाइज्ड अमाउंट बचा है।
व्हाट इज द अनयूटिलाइज्ड अमाउंट, कितना अमाउंट अनयूटिलाइज्ड है, तो उसके लिए आप यहाँ पे वेरी करोगे तो आपको बताना पड़ेगा। देन वी हैव सेक्शन नंबर 28। सेक्शन 28 प्योरली किसके ऊपर डील करता है, ओएफएस के ऊपर, करेक्ट। सो ऑफर फॉर सेल बाय सर्टेन मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो अगर ऑफर फॉर सेल करे तो मुझे बताओ ऑफर फॉर सेल किसके थ्रू होगा, सेक्शन नंबर 28 ऑफर फॉर सेल किसके थ्रू होगा, ओएफएस। सो यहां पर एक तरफ है कंपनी, एक तरफ आपके पास प्री इशू इन्वेस्टर, यस और नो। हमने जो डिस्कस किया था ये आपका हो गया प्री इशू शेयर होल्डर, और यू कैन से द प्रमोटर, करेक्ट। एक पार्टी तो ये और एक पार्टी ये, और यहां पर आ रहा है कंपनी का ओएफएस। तो अब क्या होगा, अगर आपको याद हो तो इसमें क्या होगा, ओएफएस में शेयर्स कौन देगा, शेयर्स ये प्रमोटर देगा, पर ये ओएफएस लेके कौन आएगा, ये जो ओएफएस है दिस विल बी मेड बाय, OFS will be made by the company in which the shares will be tendered by the promoter of the company, correct। और इसके बिहाफ में जो भी कंपनी के एक्सपेंसेस करेगा उसको रिम्बर्समेंट कौन किया जाएगा, ये प्री इशू शेयर होल्डर जो है वो यहां पर क्या करेगा, रिम्बर्समेंट करेगा। किस चीज को रिम्बर्स करेगा, जो भी यहां पर एक्सपेंसेस हुए हैं, ओके। ऑल द एक्सपेंसेस विच आर डन by these pre-issue shareholder, this is going to be reimbursed, yes or no guys, clear। और यहां पर ये जो प्री इशू शेयर होल्डर है ये जो भी डॉक्यूमेंट को इशू करेगा, ये डॉक्यूमेंट क्या होगा, दिस डॉक्यूमेंट वुड बी योर डीम्ड प्रोस्पेक्टस, दिस इज गोइंग टू बी द डीम्ड प्रोस्पेक्टस, यस और नो। तो इसमें सब कोई यहां पर क्या होंगे, सारे के सारे जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स है, जो दो डायरेक्टर्स है, और जो भी प्रोस्पेक्टस के ऊपर जो रूल्स है वो सब एज इट इज यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, ये वाला याद आ रहा है आपको। अच्छा, जब भी कोई शेयर होल्डर ओएफएस लेके आएगा उसका मिनिमम होल्डिंग पीरियड कितना होना पड़ेगा, विनीत बोल रहा है सर ये एक बार रिपीट करो, ओके। एक ओएफएस में क्या होता है, प्री इशू शेयर होल्डर है वो अपने शेयर्स को टेंडर करेगा, एंड ये टेंडर किसको करेगा, पब्लिक को। ओएफएस जिसमें शेयर्स किसको जाएंगे, पब्लिक को जाएंगे। लेकिन ओएफएस लेकर कौन आएगा, कंपनी लेकर आएगी, ठीक है। कंपनी इज गोइंग टू कम अप विद द ओएफएस इन विच the shares will be tendered by the pre-issue shareholder or by the promoters of the company, whatever expenses are incurred by the company like prospectus issue करना, filing fees and everything, ये pre-issue shareholder यहाँ पर इसको कंपनी को compensate कर देगा। और ये जो प्री इशू शेयर होल्डर जो भी डॉक्यूमेंट को इशू करता है उसको डीम प्रोस्पेक्टस माना जाएगा, देयरफॉर ऑल द प्रोविजंस ऑफ द प्रोस्पेक्टस वुड बी एप्लीकेबल, ओके। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखना, अगर आप एक प्री इशू शेयर होल्डर हो तो आपके लिए क्या है, मिनिमम लॉक इन पीरियड है 1 ईयर का, 1 साल से पहले आप पब्लिक इशू लेकर नहीं आ सकते। तो प्री इशू शेयर होल्डर के पास क्या है, देयर इज अ लॉक इन पीरियड ऑफ 1 ईयर।
ठीक है, आपने एक शेयर को खरीदा, उसके बाद 1 साल तक आपको उसको होल्ड करना होगा। ओनली आफ्टर अ ईयर लेटर यू विल बी एलिजिबल। तो आप जैसे एग्जाम्पल लो, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हम यहाँ पे बात करते हैं, लेट्स से विनित, विनित को 1 जनवरी 2018 को, ठीक है, विनीत को हमने इशू कर दिया था शेयर्स, किसका? ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी। ओके, नाउ आई एम सेइंग कंपनी comes up with public issue, जो कि कैसा है? अ मिक्स ऑफ फ्रेश इशू प्लस ओएफएस। आपको ये बताना है, कैन विनीत पार्टिसिपेट in the OFS if the public issue is on, let's presume, 10th December 2018। क्या विनीत एलिजिबल है? और दूसरा ऑप्शन मैं आपको देता हूं, 10th January 2019। वन में यस नो, ए यस नो, बी यस नो। सो ऑफ कोर्स ए का आंसर क्या हो जाएगा? यस बिल्कुल भी नहीं होगा, आंसर वुड बी नो। और यहां पे ही इज एलिजिबल। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। सो आई अप्रिशिएट द वे यू ऑल हैव आंसर्ड। आपने प्रॉपर ए के आगे नो, बी के आगे यस लिखा है, या आपने नो फिर एंटर करके उसमें आपने यस लिख के दोनों आंसर को एक साथ भेजा है। वेरी गुड। ओके, चलो इसी में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आता हूं और मैं आपको बोलता हूं, विनीत को यहां पे हमने शेयर ने इशू किया था। विनीत को 1 जनवरी 2018 को हमने उसको इशू किया कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जो कि कन्वर्ट हुआ इनटू इक्विटी शेयर्स ऑन 1 नवंबर 2018। अब इस केस में आप मुझे बताओ, आपका आंसर यस नो क्या होगा? आई थिंक पहले वाले के लिए तो आंसर नो ही रहेगा। पहले वाले के लिए तो आंसर नो ही रहेगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। व्हाट अबाउट बी पार्ट? व्हाट अबाउट बी पार्ट? आंसर यस या नो? सो इसका आंसर है यस। तो ये कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का जो टाइम पीरियड है उसको भी काउंट किया जाएगा। ओके, ठीक है। सो इफ एनी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, तो वेरी वेल इट कैन बी डन। ये समझा? ये पॉइंट समझा आपको? ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, फंस सकते हो उसमें। कन्वर्टेबल सिक्योरिटी वाला टाइम पीरियड भी काउंट होगा, तो कैलकुलेट दिस 1 ईयर। ओके, इसके अलावा आपको और क्या ध्यान रखना है कि जो ओएफएस में शेयर्स आएंगे, जो भी ओएफएस में शेयर्स आएंगे, ये सारे के सारे जो शेयर्स है, दीज शेयर शुड बी फुली पेड अप। अगर पार्टली पेड अप शेयर्स है तो आप यहां पर इसको इशू नहीं कर सकते। प्लस मैंने जो आपको बताया, व्हेन ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस इज फाइल्ड, मिनिमम होल्डिंग ऑफ 1 ईयर, द मिनिमम होल्डिंग ऑफ 1 ईयर। और 1 ईयर आप कब से काउंट करोगे? फ्रॉम द डेट ऑफ होल्डिंग टिल द डेट व्हेन द ड्राफ्ट इशू और द ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस इज फाइल्ड विथ द
SEBI, right? Until draft prospectus is filed with SEBI. ओके, चलिए, तो ये सब आपको कहां मिलेगा? ये सब आपको मिलेगा आईसीडीआर रेगुलेशन के अंदर, ठीक है? तो मैंने उसका पार्ट भी आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। बाय द वे, अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहोगे तो मुझे बताना। आई विल बी कंडक्टिंग अ सेशन फॉर आईसीडीआर रेगुलेशन। तो जस्ट नॉलेज सेक, अगर आप आईसीडीआर रेगुलेशन को पढ़ना चाहो तो मुझे बता देना। यू ऑल हैव माय नंबर, डू लेट मी नो। मैं आप लोगों को इंक्लूड कर लूंगा उस सेशन के अंदर, ठीक है? नथिंग रिलेटेड टू योर एग्जाम, आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से कोई रेलेवेंस उसका नहीं है, बट आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू ऑल अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो। देन वी हैव सेक्शन नंबर 29, जिसमें क्या बोला गया था कि जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू करेगा, या फिर जब भी कोई ऐसी क्लास ऑफ कंपनी, ये पब्लिक वर्ड को कट कर दिया है, एंड नाउ दे हैव सेड सच अदर क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो भी अपने सिक्योरिटीज को इशू करेगा वो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इशू करेगा। और इस वक्त क्या बोल दिया गया है? एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इज नाउ प्रिस्क्राइब्ड, यस और नो? सो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो है वो आज की डेट में अगर अपने सिक्योरिटीज को इशू करता है तो उसको कैसे इशू करना होगा? इन द डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। सो सेक्शन 29 वो यहां पर क्या बता रहे हैं? दैट एवरी अनलिस्टेड कंपनी with effect from 2nd October 2018 and every listed company, इन दोनों क्लास ऑफ कंपनीज के जो सिक्योरिटीज है वो क्या रहने चाहिए? दे शुड बी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और उसको हम लिखते हैं डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। इट मस्ट बी इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। ओके, ये क्लियर हुआ? राइट, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए, चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लेना आप कि जो लिस्टेड कंपनी है उसको एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर इनको क्या करना पड़ेगा? इनको अपना एक रिकंसिलिएशन रिपोर्ट भेजना पड़ेगा टू द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? दे नीड टू सबमिट अ रिकंसिलिएशन रिपोर्ट टू द स्टॉक एक्सचेंज। और जो अनलिस्टेड कंपनीज है, वैसे मेरे से एक मिस्टेक हो गया है, मैं बार बार अनलिस्टेड कंपनी बोल रहा था। करेक्ट आंसर है यहाँ पे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। ओके, सो अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, इन दैट केस आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में इनको हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। हाफ ईयरली इनको रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा टू द आरओसी, और ये किस में होगा? दिस विल बी इन फॉर्म PAS6, ठीक है? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, PAS का फुल फॉर्म ये रहेगा। तो साल में 2 बार इनको यहाँ पर यही सेम रिकंसिलिएशन रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा, जिसमें वो क्या बताएंगे? रिकंसिलिएशन रिपोर्ट के अंदर ओपनिंग शेयर्स कितने थे ड्यूरिंग द टाइम, जैसे यहाँ पे क्वार्टर है, ड्यूरिंग द क्वार्टर कितने शेयर्स को हमने इशू किया, राइट? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे ओपनिंग, फिर आपने कितने शेयर्स को यहाँ पर इशू किया,
कितने शेयर्स आपने बाई बैक किए, कितने शेयर्स को आपने अदरवाइज कैंसिल किया, कितने शेयर्स को फोरफीट किया, और अब आपके पास क्लोजिंग शेयर्स कितने हैं। तो ये रिपोर्ट आपको हर क्वार्टर में, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो हर क्वार्टर में, और अदरवाइज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो तो हाफ ईयरली आपको ये फाइल करना पड़ेगा। लिस्टेड कंपनी ये डेटा फाइल करेगा किसको, स्टॉक एक्सचेंज को, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी यही डेटा फाइल करेगा किसको, आरओसी को। आप बताइए, इज दिस क्लियर बच्चा लोग, इज दिस क्लियर ये वाला? ठीक, चलिए फिर आगे देखते हैं। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था आगे सेक्शन नंबर 30, एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो यहाँ पर क्या बताया गया था कि आप प्रोस्पेक्टस में कोई भी डेटा अगर देते हो तो वो करेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई मिसलीडिंग या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, और अगर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पर आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा, राइट, प्लस क्रिमिनल ऑब्लिगेशन ऑफेंस भी हो जाएगा, वो डायरेक्टर्स जाएंगे जेल में। इसके अलावा आप वहां पर बताओगे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड ये सब चीजें। तो एक प्री इशू एडवर्टीजमेंट इज ऑल्सो इशूड, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो पब्लिश्ड। इट इज पब्लिश्ड इन विच न्यूज़पेपर, देखो इट इज पब्लिश्ड इन, तो ये मैं चलो यहाँ पर लिख देता हूँ। सो यू हैव सेक्शन नंबर 30 which is for the advertisement of prospectus, राइट। अब ये एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस ये किस में जाएगा, ये जाएगा इन 3 न्यूज़पेपर्स। वन इज इंग्लिश, अनदर इज हिंदी, एंड थर्ड इज वर्नाकुलर लैंग्वेज। करेक्ट, ये 3 इसमें जाएगा। प्री इशू एडवर्टीजमेंट आपका जाता है, इसमें आप क्या करते हो, यू प्रोवाइड ऑल नेसेसरी डिस्क्लोजर्स, राइट। वैसे इसका पूरा एक लंबा लिस्ट है। सो यू प्रोवाइड नेसेसरी डिस्क्लोजर्स, करेक्ट, जिसमें आप कंपनी का नाम, CIN नंबर, कोई भी चेंजेस वगैरह अगर हुआ है, ठीक है, और इशू आपका कब आ रहा है, कब क्लोज होगा, ये सारा इंफॉर्मेशन आप वहां पर पूरा बताओगे, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग द बेसिस ऑफ इशू प्राइस, कि आपने ये प्राइस क्यों सेट किया है। अगर आप बोल रहे हो कि कंपनी 300 रुपीज में अपने शेयर को इशू कर रहा है, तो क्यों 300 में इशू कर रहा है, आपको इसके बारे में पूरा एनालिसिस उसमें बेसिस देना पड़ेगा। तो ये प्रोस्पेक्टस के अंदर आपका रहेगा हर बार। आप बताइए, हमने यहाँ तक कवर किया था, आई थिंक शेल्फ प्रोस्पेक्टस से पहले मैंने स्टार्ट किया था। तो ये देखो, हमने ये देखा था कंपनी को फंड्स चाहिए, पब्लिक पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू, या फिर सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल से, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। कंपनी दो तरह के पब्लिक इशू के साथ आ सकता है, वन कैन बी योर IPO, अनदर कैन बी योर FPO। फिर हमने देखा था फ्रेश इशू, ऑफर फॉर सेल, करेक्ट। फिर इसके आगे हम लोगों ने कवर किया था प्रोस्पेक्टस का फुल फॉर्म। तो ये देखो, प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, और ये मैंने आपको बताया भी था, आपके मॉड्यूल के अंदर डायग्राम बना हुआ है। फिर हमने देखा था डॉक्यूमेंट्स विच कंटेन द ऑफर फॉर सिक्योरिटी विल बी डीम्ड प्रोस्पेक्टस, करेक्ट। तो ये आपके पास पार्ट आया। फिर हमने देखा था पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी, ये देखो ये आपके पास एक चार्ट था। अब सेक्शन 24 हमने सहारा के बारे में भी डिस्कस किया था, ठीक है, पावर ऑफ सेबी टू जुरिस्डिक्ट व्हाट लिस्टेड कंपनी एंड आल्सो द कंपनी विच आर इंटेंडेड टू बी लिस्टेड, और इंटेंडेड टू बी लिस्टेड कब, अगर आपने प्रोस्पेक्टस सेबी को फाइल कर दिया है तो, राइट। फिर हमने यहाँ पर देखा था मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, ये तो हमने ऐसे ही अदरवाइज डिस्कस कर लिया था। अब आप देखो मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, अब ये सब ओमिट कर दिया गया, मैंने आपको बताया था एक्ट में चेंजेस आ गया। तो यहाँ पर अब बस खाली आपको ये देखना है सेबी क्या बता रहे हैं, करेक्ट। फिर राइट इशू के लिए आपको एप्लीकेबल नहीं है, या फिर ऑलरेडी इशूड शेयर्स है तो उसके लिए एप्लीकेबल आपका नहीं रहेगा। इसके अलावा प्रोस्पेक्टस आपको ROC को भी फाइल करना होगा, एंड दिस हैज टू बी साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, राइट। एवरी डायरेक्टर्स और प्रपोज टू बी डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, बट मेन जो डायरेक्टर्स है उसमें प्रोस्पेक्टस में 2 डायरेक्टर्स का रहेगा। एक्सपर्ट स्टेटमेंट के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। प्रोसेस हमने देखा था, कंपनी ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस फाइल करेगा,
वैलिडिटी 90 डेज आ गया, तो वापस से आपको ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस फाइल करना होगा, करेक्ट। फिर वेरिएशन हमने चेक किया था कि अगर आप टर्म्स में चेंज करते हो। फिर हमने स्पैक के बारे में भी पढ़ा था। क्या आप लोगों ने किसी ने स्पैक के बारे में सर्च किया? SPAC USA, आप लोगों ने इसके बारे में रिसर्च किया किसी ने भी? नहीं? चलो आज मैं आर्टिकल भेजूंगा, उज्जवल मैं आपको आर्टिकल भेजूंगा, आप सबके साथ शेयर कर लेना SPAC के बारे में। देयर इज अ गुड आर्टिकल, और वो आर्टिकल अच्छा लगे तो डू शेयर योर कमेंट्स देयर, राइट। अच्छा कमेंट वहां पे शेयर करना, दैट अंडरस्टूड और वेल रिटन और अ थैंक यू आर्टिकल, कुछ ऐसा। जो लोग लिखते हैं बेचारों को बहुत अच्छा अप्रिसिएशन फील होता है। कभी आप भी ऐसे आर्टिकल्स लिखोगे तो डू राइट दैट आर्टिकल, इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल दैट आई हैड रेड, ठीक है। तो डू शेयर दैट कमेंट इन दैट। मैंने नहीं लिखा है वो आर्टिकल, किसी और ने लिखा है, बट किसी और ने भी अच्छा आर्टिकल लिखा है वो, तो आप डेफिनेटली उसको रीड करना SPAC के बारे में, करेक्ट। फिर हमने यहाँ पे देखा था वेरिएशन के लिए, अगर आप कोई भी टर्म्स में वेरिएशन लेके आते हो तो आपको चेंजेस करना होगा। वेरिएशन लाने के लिए आपको ये सब चीजें इंक्लूड करके बताना पड़ेगा। प्लस आप जो यहाँ पे वेरिएशन करोगे उसके लिए जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, दिस विल बी वाया पोस्टल बैलेट। ये देखो जो स्पेशल रेजोल्यूशन है, दिस इज गोइंग टू बी पास्ड थ्रू पोस्टल बैलेट, करेक्ट। इसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पे ऑफर फॉर सेल, OFS के बारे में हमने पढ़ा था, एंड ऑफर फॉर सेल बाय द मेंबर्स, ये सब हमने देखा था, राइट। तो ये सब आपका एप्लीकेबिलिटी रहता है। फिर सिक्योरिटीज टू बी मेड इन द डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, तो मैंने आपको बताया था पहले पब्लिक लिखा हुआ था, अभी उसको कट कर दिया है, नाउ दे हैव मेड इट कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो अभी इट इज ओनली अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ये एग्जाम क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, ये एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड दिस इज विद इफेक्ट फ्रॉम, ये देखो 2 अक्टूबर 2018, तो ये डेट भी आपके लिए रेलिवेंट हो जाता है, करेक्ट। तो ये आप लोगों को मैंने पढ़ने को बोला था, तो ये रूल्स है। फिर एडवर्टीजमेंट्स हम लोगों ने देखा था, कंटेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस, आई थिंक यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था एडवर्टीजमेंट तक। अब ये आ जाता है आपका कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे सब कुछ आ गया है। एक तो प्रोस्पेक्टस में आपका डेट रहेगा, आई थिंक मुझे दूसरा कलर यूज करना चाहिए। सो एक तो आपके प्रोस्पेक्टस में डेट रहेगा, एक्सपर्ट का रिपोर्ट रहेगा, और कवर पेज होगा। कवर पेज के ऊपर ये लिखा हुआ रहेगा दैट अ कॉपी ऑफ द prospectus is delivered to the ROC plus all the document that you have submitted to ROC, ये आपका रहेगा। एक्सपर्ट रिपोर्ट जो है, it should be made by the person who was not engaged, basically independent person, and the written consent है वो given and it is not withdrawn। इसके अलावा इट शुड बी साइंड बाय द डायरेक्टर्स, एंड जितने भी इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स यहाँ पर आपको बताए हुए, बेसिकली सेबी जो भी यहाँ पर बताता है वो सब आपको इधर क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अब देखो जैसे ये एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल आपके ICAI मॉड्यूल से ही मैंने पिक किया है, ओके। इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ डॉक्टर सनी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड हैज अलॉटेड शेयर्स टू इन्वेस्टर्स एट लार्ज without issuing the prospectus with the registrar of companies Mumbai। Okay, tsunami आया, okay। So in this regard it is to be noted that a public company can issue securities to the public only by issuing the prospectus। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पर इन्होंने वायलेशन कर दिया, ये सुनो, यहाँ पर इन्होंने वायलेशन कर दिया। बिना प्रोस्पेक्टस इशू किए आप पब्लिक इशू लेकर आ गए, तो यू हैव डन द वायलेशन। अब आपका ये एक होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा ये बताने के लिए कि ये वायलेशन इज अंडर सेक्शन व्हाट, अंडर सेक्शन विच ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मुझे अभी के अभी आंसर नहीं चाहिए, आप आराम से पढ़ोगे फ्रॉम सेक्शन 23 टू सेक्शन 30, और फिर आप मुझे इसका आंसर करके बताओगे कल की क्लास में कि सर ये वायलेशन जो हुआ है, ये वायलेशन कौन से सेक्शन के अंडर हुआ है, ओके। इज दिस क्लियर, करेक्ट। अब आ जाता है आपके पास दो तरीके का प्रोस्पेक्टस, एक है सेल्फ प्रोस्पेक्टस और दूसरा है आपके पास रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, राइट। तो फिर एक काम करते हैं, वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो देन। सेल्फ प्रोस्पेक्टस आज मैंने आप लोगों को काफी फ्लो में लेके आ गया हूं, और काफी हद तक आप लोगों को समझ में भी आया होगा
कि अब क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस से हम कल शुरू करेंगे, बट टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल हैव लेक्चर ऑलमोस्ट टिल 8:30। हमारा पूरा 8:30 तक पूरा पूरा लेक्चर रहेगा, ठीक है। बट प्लीज आज जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है प्लीज रिवाइज। मैंने आप लोगों को इसीलिए ऐसे एंड पे लाके छोड़ा है कि इसका आंसर करने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सो प्लीज रिवाइज वॉट एवर वी हैव कवर्ड टिल नाउ। आज आप लोगों को थोड़ा समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ पर आप लोगों को दोबारा से पढ़ना है। अरे थैंक यू सर, तो वेट करो, अभी जो बोल रहा हूँ वो तो सुनो, ठीक है। तो जितना मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया है उसको अच्छे से आप ब्रश अप कर लो। ये स्लाइड्स को भी मैं अभी के अभी अपडेट कर दूंगा, तो गूगल ड्राइव में ये स्लाइड आपके पास रहेगा। इवन द लेक्चर विल बी अपडेटेड इन 15 to 20 मिनट्स, राइट, इन योर यूट्यूब प्लेलिस्ट। आराम से इस लेक्चर को आप दोबारा से सुनना चाहते हो तो सुनो, अदरवाइज स्लाइड्स को गो थ्रू करके प्रॉपरली आप ब्रश अप करो और इस क्वेश्चन का आप आंसर करोगे, ठीक है। करेक्ट, कोई घाई नहीं है, बिल्कुल। वैसे भी तैयारी चल ही रही है, दौड़ तो रही नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग भी मत दौड़ो, राइट। सो सी यू गाइस टुमारो 6:30 सेम लिंक के साथ आपको लॉग इन करना है। नो वन इज गोइंग टू सेंड यू द न्यू लिंक, इसी लिंक के साथ में आपको लॉग इन करना होगा, ओके। चलिए देन, कल मिलते हैं 6:30 बजे। टेक केयर, बाय बाय।